Sure, started. So good morning, everybody. Like every Sunday, we have come together for this Mind Sparkle series. This is a series in which we try to engage your mind with the best of the available expertise from different walks of life, different fields where you can engage and you can motivate yourself to do well in those careers or in those fields, or you can make a career change from one sector to another sector. Our intention is to bring those people who can highlight the importance of that career, highlight the importance that is required to do well in those sectors, open up your minds to different possibilities, and engage you constructively. They can also tell you about the journey they have made to reach there, their fall, their rise, and their mistakes, and their good steps which they have taken. These are all combination of a successful person. We want to bring you role models before you so that you can engage yourself with them, ask them questions, ask them things that you would generally feel inside yourself while thinking about yourself. So these are areas in which I wanted to bring face-to-face people from all sectors. So today we have a personality in the name of Hiba Khair, Miss Hiba Khair. She is a person who has taken risk in her life, and as we can all know from her bio, which I will be telling you, it seems perfect that she should be opening this topic of if you're not taking risk in your career, that is the riskiest game you are playing with your career. So risk is one of the area in which you have to engage yourself if you want to make a big leap or do success. I will tell you one thing from history. Last Sunday, we were discussing about Indian system of medicine, Unani system of medicine especially, and I mentioned about Abu Bakr ibn Razi, the great medieval physician, one of the greatest mind in the medical field. His books on measles and chickenpox are still talked about in the field of medical. So I wanted to tell you something about his life, which will relate to the risk which people take and how big it can be, the game changer for the whole humanity. Till 40 years, Razi was not at all concerned with the field of medicine. He was trying to be a musician. He was trying to be an astronomer. He was trying to be a writer. He was trying to be everything but a medical practitioner. In the 40th year of his life, or in the early 40s, he realized that he has some passion and knack for medical field while he visited some hospital. From there on, the journey began. Can you imagine even today a person entering into a medical field at the age of 40 or in the early 40s? He made a big career decision, and that is a game-changing decision. The world knows Al-Razi as Razes in the Western field, or Rasis. And he is also one of the great minds who talked about epidemics, which we are talking now, along with Avicenna, Ibn Abil Sina, and Raz. These are the two people who have redefined medical. Till the 18th century, their books were taught in all medical colleges across England, including Oxford. And it's still, they are the name to reckon with. So what I'm trying to bring to you is that risk-taking ability. And if you come nearer, then you have the KFC. The founder of KFC became billionaire or millionaire, whatever you can say, in the late 60s. He took a decision to open up KFC in late 40s or maybe late 50s, if I am correct. So these are game-changing decisions. You have to take risk. Until unless you don't take risk, you don't succeed. That's a call you have to take. And to make your call easy, we have experts, those who have gone through this. Ms. Hiba Khair, she's an IIM Kozhikode graduate. She has been a management person all through, and she has been a product of St. Stephen's. She is a business analyst, worked with the banking sector, and after working for banking sector, she realized that she has something to offer to entrepreneurship also. And she started her entrepreneur journey also, and she did well. After that, again, she went to the project management side, and now she is with the project management. She would be talking about project management as well. If you know, Google has included 4 things in their domain for future, and one of these project management. Other is user experience, and another 2 things is their data analytics. So project management is also an upcoming field. You can ask questions about that also. And as well, she is a financial expert. She can ask her, answer your questions related to career in finance and business. So without wasting much time, I hand over this forum to Ms. Hiba Khair, and she will be the one who will be talking about. And while she is talking, type your questions in the chat box. We'll take up after our session. Ms. Hiba Khair, please, the session is yours.
Thank you so much, Mr. Shanawal. That was a very generous introduction. And I think you very aptly summarized what we want to be talking about today in terms of the risk that one has to take in their career. And I would actually take a chance to take a step back and say that the risk that you take does not just begin with your career and the job that you're doing, whether you choose to switch a job or you want to switch over to entrepreneurship, you want to take up a different role within the same company that you're working in. It also begins at a stage where you're probably in class 10th or class 12th and you decide what next to do with your life. Because at that stage, you will be given a lot of safe, sound options to go with. But that is the stage where you need to say that, you know what, do I want to tread the safe traditional path? Do I want to become an engineer and doctor or a lawyer? And nothing against these professions, they're absolutely great professions. But if your heart is not in that, do you say, I want to step away from here? Maybe have a chat with my parents, with my mentors, who at that point are guiding me to this path, and say, you know what, I really like art, I want to be an artist. And or, you know, I think I'm great at photography, why don't I give this a chance? And you know, the bad name that a commerce or a arts field gets, you know, I'm not going to listen to that. And if I'm really good at a subject, that's what I want to do, that's the line I want to make a career in. So the risk taking actually starts right there, and that molds your thought process in a way that you're not always risk averse, you're not always trying to tread a path which is the done and dusted, safe, traditional way, the one where you say, you know, study this, get good marks, you'll get into a good job, and your life is set. So that's the easy way. And maybe for a lot of people that works. I'm not saying that the very risky path is for everybody to take. All I'm trying to say here is that we really need to keep our minds open at every stage to see that we are not missing out on opportunities because we are absolutely risk averse and we are not aware of what all is on offer. So, you know, I think just in favor of the larger audience, मैं थोड़ा इसको हिंदी और इंग्लिश मिक्स्ड रखूंगी if people don't mind. आपने कई किस्से सुने होंगे कि किसी ने अपने करियर में रिस्क लिया, किसी ने अपने लाइफ में रिस्क लिया और उसका पे ऑफ बहुत हाई हुआ. इनफैक्ट अक्सर जब आप फेमस पर्सनालिटीज के बारे में सुनते हैं तो आपको यही बताया जाता है, उनकी लाइफ स्टोरीज ऐसी होती हैं, तो एक रैग्स टू रिचेस की कहानी होगी या फिर कोई कहानी होगी कि भाई ये इंसान इस फैमिली में पैदा हुआ, इस एटमॉस्फेयर में पला बढ़ा, मगर एट सो एंड सो एज उसने डिसाइड किया कि वो फैमिली बिजनेस छोड़ के कुछ और करेगा, या फिर वो घर से अलग होके उसने अपनी एक पाथ चूज किया, अपना एक करियर चूज किया, या उसने हट के कोई ऐसी चीज पढ़ी जिसके लिए उसकी फैमिली की या उसके आसपास के लोगों की सहमति नहीं थी और उसको उस चीज में बहुत तरक्की मिली, बहुत सक्सेस मिली. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आई एम श्योर आपके दिमाग में इस वक्त काफी एग्जाम्पल्स आ रहे होंगे आपकी खुद की फैमिली के अंदर से, आपके आसपास के एनवायरनमेंट से. और अभी फेमस पर्सनालिटीज तक तो मैं गई भी नहीं हूँ, फिर भी बचपन से आपने अपने बड़ों से यही सुना होगा कि जैसे मैंने कहा साइंस पढ़ लो, आर्ट्स पढ़ लो, आर्ट्स में क्या रखा है, कॉमर्स में क्या रखा है, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, यही सब सेफ ऑप्शंस हैं. और ये फोटोग्राफर, सिंगर, आर्टिस्ट, इस सब बनने में कुछ नहीं रखा है, ये लाइफ बर्बाद करने वाली चीजें हैं. मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोग में से कितने लोगों ने सानिया मिर्जा का नाम सुना है? लगभग सभी ने सुना होगा. या मलाला यूसुफजई का नाम सुना है, एक्टिविस्ट हैं, आज तक की सबसे कम उम्र की नोबेल लॉरियट हैं. और थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री की शबाना आजमी और हुमा कुरैशी और इन तमाम नामों, जोया अख्तर, इनकी तरफ तो मैं जा भी नहीं रही हूँ इस टाइम पे, वो उनको तो मैं मेंशन भी नहीं कर रही हूँ. मगर इन सब में आपने देखा कोई भी एक ट्रेडिशनल करियर नहीं है. ये भी कहा जा सकता है इन्होंने एक हट के एक रिस्की करियर चूज किया
और उसमें अपना नाम बहुत ऊंचा किया। इन सब नामों का आपके सामने लाने का मकसद मेरा यही है कि मैं आपको बता सकूं कि सिर्फ एक ट्रेडिशनल सेफ करियर पाथ चूज करना, साइंस चूज कर लेना, ये सब गारंटी नहीं करता कि आप सक्सेसफुल ही होंगे। सक्सेस या फेलियर आपकी मेहनत डिसाइड करती है, आपका खुद का इंटरेस्ट डिसाइड करता है, चाहे फील्ड कोई भी हो जो आप चूज करें। I know this is a very risky advice in itself for me to be giving people, and आप लोग में से काफी viewers जो हैं काफी young होंगे, स्कूल स्टार्ट कर रहे होंगे या अपना करियर स्टार्ट कर रहे होंगे, किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो शायद मैं इसी वक्त अगर आपको कह दूं कि आप हर तरह के रिस्क लीजिए, आप नॉन ट्रेडिशनल पाथ्स चूज करिए, ये थोड़ी रिस्की एडवाइस है। तो मैं क्वांटिफाई करती हूँ अभी जो मैं बोल रही हूँ उसको, कि रिस्क भी अपने आप में गारंटी नहीं करता कि आप सक्सेसफुल ही होंगे, मगर हाँ, अगर सोच समझ के अपने सिचुएशन को नाप तोल के अगर आप रिस्क लेंगे, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, तो जो काम आप करेंगे अपने, आप एक एवरेज लें तो एक 22-23 इयर्स पे हम अपना एक करियर पाथ स्टार्ट करते हैं। जिंदगी में हम जो कर रहे होते हैं वो स्टार्ट करते हैं, इट गोज ऑन फॉर द नेक्स्ट 40 इयर्स। तो अगर आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके चेंजेस लाएंगे, अपने आप में रिस्क लेंगे, तो वो 40 साल आपके आप आराम से सेटिस्फाइड और खुशी में बिताएंगे। पढ़ाई में अपने पसंद का सब्जेक्ट लेना एक रिस्क है, एक सेफ बोरिंग नौकरी के लिए को छोड़ के एक नई नौकरी तलाश करना रिस्क है, नौकरी छोड़ के अपने खुद का काम करना रिस्क है। इनफैक्ट जो काम आप कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये आपको खुशी नहीं दे रहा है और योर हार्ट एंड सोल डज नॉट लाई इन इट, तो उस नौकरी को चेंज करना, चाहे उसी कंपनी के अंदर आप रोल चेंज करें, एक अलग तरीके का काम मांगे, और इवन टू गो एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ योर सुपीरियर्स एंड से, you know what, this is not what I want to do, my heart lies in something else. For example, मैं फाइनेंस में थी with Citibank, I was a business analyst. My days were spent reports बनाना, एक्सेल शीट्स फिल करना, एनालिसिस करना, मैं वो कर सकती थी, I could do it, मेरी एजुकेशन उस लाइन में थी कि मैं उस चीज को कर सकती थी, मुझे आता था, मगर मैं खुश नहीं थी। One option was I could have gone and asked them कि भाई मुझे ये नहीं पसंद आ रहा है, मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, आप मुझे मार्केटिंग में रोल देंगे कि नहीं? Having that conversation, and it starts there. Like those are risks we are not taking in our day-to-day life. And right now I'm only talking about career. So those are risks we are not taking in our career, and we need to do that. खैर मैंने मार्केटिंग ना मांग के मैंने एक अलग ही चीज सोची, मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ क्रिएटिव फील्ड में करना है और मैं अपना काम स्टार्ट करना चाहती हूँ, जो कि मैंने किया। हैविंग सेड दैट, हर किसी की सिचुएशंस अलग होते हैं और अपनी सिचुएशंस का हर इंसान बेस्ट जज होता है। जो मैं रिस्क टेकिंग के सिलसिले में कह रही हूँ, हो सकता है हर किसी पे इक्वली अप्लाई ना करता हो। आई अंडरस्टैंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल a job and the job that they hold is their means of livelihood. I'm not asking you to put that at risk. I'm not asking you to put that at stake, rather. All I'm asking is to take calculated risks along the way, ताकि आप जिस मुकाम पे पहुंचे a couple of years down the line, आप वहां खुश हों। आप सुबह अगर उठें तो आप कहें, हाँ ये काम मुझे करना पसंद है। आप पूरे हफ्ते फ्राइडे या सैटरडे के लिए वेट ना कर रहे हो कि भाई एक दिन तो मेरी नौकरी से जान छूटे, या जो काम मैं कर रहा हूँ उससे जान छूटे, या जो मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ उससे जान छूटे। सो देयर आर अ फ्यू पॉइंट्स जो रिस्क टेकिंग के साथ साथ चलते हैं, और जिसे मैं पॉइंटर्स, बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं जो मैं पॉइंटर्स की तरह आपसे शेयर करना चाहती हूँ, which personally helped me when I was looking for a switch. And after I've covered these, I'll very briefly go over my career trajectory in case that is of interest to you. The first and foremost, जब आप career के अंदर एक calculated risk ले रहे हों,
सिर्फ सैलरी को अपना अल्टीमेट गोल मत बना के चलिए, unless that is what gives you happiness and that is the only thing you're looking out of a job, which traditionally is not the case. सिर्फ सैलरी को अपना गोल बना के मत चलिए। बहुत फर्क पड़ता है जिस तरह का आप काम कर रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, आपके को-वर्कर्स, आपकी कंपनी के आइडियल्स क्या हैं, और जिन लोगों से आप हर दिन जाके जॉब पे 8, 9, 10 घंटा इंटरैक्ट कर रहे हैं, is all of that leading to more stress in your life, or is all of that conducive to how you are as a person? सैलरी, एंड ये काफी क्लीशेड है कि अपना पसंद का काम करो, पैसा विल फॉलो। आई एम नॉट सेइंग दैट्स 100% द केस, कई बार काफी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बट द फैक्ट रिमेन्स कि अगर आपका दिल, आपका इंटरेस्ट उस काम में है जो आप कर रहे हैं, आप उसको अपना 100% देंगे, और जब आप उसको अपना 100% देंगे तो आपको उस काम में सक्सेस मिलेगा, और जब सक्सेस मिलेगा, so it is but natural that monetary gains follow from that. So that would be my first point to you. सिर्फ सैलरी को अपना अल्टीमेट गोल बना के मत चलिए। आपका जॉब सेटिस्फैक्शन, इंटरैक्शंस, कोवर्कर्स सब इम्पोर्टेंट हैं, आप खुद क्या करना चाहते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, कुछ नया हमेशा सीखते रहिए, प्रोफेशनली, पर्सनली, चाहे वो एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स हो अबाउट हाउ टू राइट योर ईमेल्स बेटर, या फिर एक प्रेजेंटेशन के ऊपर कोई स्किल है, या फिर नेगोशिएशन का स्किल आप सीख सकते हैं, और आपको ये अपने जॉब से इंटरलिंक करने की भी जरूरत नहीं है। आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हैं, आप वो करिए, मगर डोंट स्टॉप इन्वेस्टिंग इन योर ओन सेल्फ। योर स्किल्स आर योर ओन। वो एक जॉब छोड़ेंगे दूसरी जॉब ज्वाइन करेंगे, उसमें नहीं कम होने वाला है। आपकी प्रोफाइल बदल जाएगी, हो सकता है कुछ सर्टिफिकेशंस या कुछ हो जो चेंज हो, बट दिस इन्वेस्टमेंट दैट यू मेक इन योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको कॉन्शियसली अपने आप को मोटिवेट करके करते रहना होगा। कुछ कुछ सीखते रहिए, चाहे छोटे से छोटा स्किल हो, मगर सीखते रहिए थ्रू आउट। आइडियली अपने पसंद का एरिया आइडेंटिफाई करिए और उसमें एक्सपैंड करिए, बिकॉज अगेन गोइंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, अगर ये चीज आपके पसंद की है, आपको इसमें इंटरेस्ट आता है, तो आप उसको ज्यादा अर्नेस्टली करेंगे, उसमें आप ज्यादा मेहनत करेंगे, और वो मेहनत आप माइंड नहीं करेंगे करना। और ये बात एस्टैब्लिश्ड है कि जिस चीज में आप एफर्ट डालेंगे, मेहनत डालेंगे, उसका फल आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अपनी लाइफ के डिसीजंस, अपने लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथ में रखिए। एडवाइस हमेशा सुनिए, always be receptive to what people have to say, but do not let that be the sole guiding factor for where you are headed in life. हमारे साथ अक्सर ये होता है, and I will take my personal case, जहाँ मेरा इंटरेस्ट हमेशा क्रिएटिव फील्ड में था। मैंने 10th के बाद मैंने कहा मुझे साइंस नहीं पढ़ना है, काफी प्रेशर था कि नहीं साइंस पढ़ लो। इनफैक्ट हमारे स्कूल की प्रिंसिपल एट दैट पॉइंट टोल्ड मी कि मैं तुम्हें कॉमर्स में एडमिशन नहीं दूंगी, तुम्हें साइंस में ही जाना है। आई पुट माई फुट डाउन, आई सेड नहीं, मुझे कॉमर्स पढ़ना है, साइंस में मेरा इंटरेस्ट है नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। एंड आई जेन्युइनली फील अगर मैंने साइंस उस टाइम ऑप्ट की होती तो मैं शायद वो रिजल्ट्स नहीं ला पाती अपने एग्जाम में, और आगे चल के उन कॉलेजेस में नहीं अप्लाई कर पाती जो मैं कॉमर्स के साथ कर सकी। तो मैंने वो किया। उसके बाद जब मैं कॉलेज लेवल पे आई, I still wanted to do something creative, but that is where I did not take a risk. मुझसे कहा गया कि भाई ये आर्टिस्ट और डिजाइनर बनना ये ट्रेडिशनल फील्ड्स नहीं है, क्या करोगे इसमें, कौन सी नौकरी मिल जाएगी तुमको, तुम वो पढ़ो जिसमें एक अच्छा ट्रेडिशनल सेफ करियर का एक ऑप्शन है। तो मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्ट किया, मैंने पढ़ा, पास कर लिया, मगर मेरा दिल कभी नहीं था उसमें। आज की डेट में इफ आई लुक बैक, मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने किसी क्रिएटिव फील्ड में यही 3 साल अपने अंडर ग्रेजुएट के स्पेंड किए होते, शायद मैं लाइफ में कहीं और होती। मैंने, और एटलीस्ट नहीं भी होती, सेम लेवल पे होती,
मैं शायद उन 3 साल बहुत ज्यादा खुश होती और इन्वॉल्व होती अपने पढ़ाई के साथ एज अगेंस्ट हाउ आई वाज विद इकोनॉमिक्स. फॉलोइंग दैट अगेन आई वाज टोल्ड भाई एमबीए कर लो, कैट का एग्जाम दे लो और एसोसिएटेड एग्जाम्स दे लो, एमबीए में एडमिशन ले लो. कुछ सिचुएशन ऐसी थी और कुछ मेरा डिसीजन था, आई सेड नहीं मुझे नौकरी करनी है. तो मैंने ज्वाइन किया. आई जॉइंड अ कंपनी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर. दिस वाज अ रियल एस्टेट फर्म. और एक चीज जो मैंने कॉन्स्टेंटली की वाज टू कीप गोइंग बैक एंड आस्किंग फॉर वर्क व्हिच आई वांटेड टू डू. ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक सेट नंबर ऑफ फंक्शंस थे जो मैंने किए, मगर मैंने जाके कहा मुझे, आप रियल एस्टेट फर्म है, आप घरों के इंटीरियर्स करते हैं, मुझे इंटीरियर्स में इंटरेस्ट है, आई वांट टू नो दैट. क्या मैं आर्किटेक्ट्स के साथ बैठ सकती हूँ, मुझे मटेरियल सीखने का शौक है. आई डिड दैट. देन हमारा एक लीजिंग डिपार्टमेंट था. आई वेंट टू देम एंड सेड आप लोग क्या करते हैं, मुझे बताइए, मुझे जानना है. सो आई लर्नड अ लिटिल बिट फ्रॉम देम. सो बाय द एंड ऑफ 2 years जो मैंने इस रियल एस्टेट फर्म के साथ बिताए, मुझे बेहतर समझ में आया कि मैं क्या करना चाहती हूँ, एंड विच वाज दैट इवेंचुअली आई वांटेड टू डू समथिंग ऑफ माय ओन, जहाँ पे मुझे विजिबिलिटी हो कि मेरा काम, मेरा बिजनेस कहाँ जा रहा है, और उससे किसी ना किसी को बैक इन द कम्युनिटी हेल्प हो. सो anyway those 2 years ended. I figured कि मुझे एक MBA करना चाहिए because that adds to my qualification and my ability to learn how to do business, जो मैं फाइनली करना चाहती थी. मैंने फिर से कैट दिया. IIM कोഴിക്കോട് का में सिलेक्शन हुआ, वहां गई, फाइनेंस और स्ट्रैटेजी पढ़ा, गॉट आउट one of the day zero companies जो first day आती हैं, रिक्रूट करती हैं, backed an offer with them. उसके बाद जब मैंने as a business analyst काम करना शुरू किया, so like I told you, I wasn't happy filling Excel sheets all day long, and I went back to what I wanted to do in the very beginning, which was to set up my own business. मैंने जामा set up किया. Within a period of 4 years, my 3-member team became a 60-member team. मेरे प्रोडक्ट्स इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे रिटेल होते थे, न्यूयॉर्क में स्टॉक होते थे. 2018 में न्यूयॉर्क फैशन वीक में देयर वाज अ कैप्सूल कलेक्शन ऑफ इमर्जिंग इंडियन डिजाइनर्स, जिसमें हमारे डिजाइन्स रिप्रेजेंट हुए. विद इन इंडिया विद्या बालन, नेहा धूपिया, इन लोगों ने ये डिजाइन्स पहने. बट व्हाट गेव मी द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन वाज कि ये सारा काम दिल्ली में जो माइग्रेंट लेबर है फ्रॉम बंगाल, फ्रॉम बिहार, फ्रॉम असम, इन एरियाज का माइग्रेंट लेबर जो है, एंड स्पेशली जो औरतें घर पे रह के काम कर रही हैं, ये सारा काम उनके थ्रू हो रहा था. हमने थोड़ा एफर्ट लगा के एक मॉडल क्रिएट किया जहाँ पे हमारे रनर्स थे जो हमसे काम समझ के और उसके बाद ले जाके और घर घर में इन औरतों को देते थे घर पे, और वो घर पे बैठ के ये एम्ब्रॉयडरीज करती थी, फिनिशिंग्स करती थी, जो उनके लिए एक एडेड इनकम था घर के लिए. And their husbands were okay, because you have to understand this class is very strongly controlled by the men folk. तो उन मर्दों को ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि औरतें ये काम कर रही हैं, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं स्टेप कर रही थी, वो घर देख रही थी, उनको टाइम मिलता था खाना पकाना, बच्चे देखना, और साथ के साथ वो ये काम भी करती थी, which was adding to the household income. So that was what gave me the greatest satisfaction, कि मेरी जो कुछ पढ़ाई हुई है, मुझे जिन अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस करने को मिला है, उनका फायदा उन लोगों को मिल रहा है कि जिनको ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली. एंड माय अपॉर्चुनिटीज वर बेसिकली बिकॉज ऑफ द family that I was brought up in. My parents thought it was okay to send me to school. They encouraged me to study forward. You have to understand that this comes to you by sheer luck, the family that you're born into, the privileges that you are given. हो सकता है कोई और आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, आपसे कहीं ज्यादा तेज है, मगर वो एक ऐसे सेटअप में पैदा ही नहीं हुआ कि जहाँ पे उसको एजुकेशन का एक्सेस हो, उसको कोई बताए कि रिस्क लो, पढ़ाई करो, अपने आप में इन्वेस्ट करो, उसको नहीं पता. तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको
उनकी हेल्प करें, उनके लिए कंट्रीब्यूट करें. But I think I'm straying a little away from the topic, which is basically risk taking. So, like I said, the last point that I want to cover with you is कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद अपने हाथ में रखिए, अपने डिसीजन खुद लीजिए, अपनी गलतियां खुद करिए, एंड टेक ओनर्स फॉर देम. मैं ये नहीं कह रही कि आप रेकलेस डिसीजन लीजिए. रेकलेसनेस और रिस्क में फर्क समझना बहुत जरूरी है. अगर आप रेकलेस हैं, आप किसी चीज से बोर हो गए, आपने कहा मैं छोड़ता हूँ, मुझे नहीं करना, दैट इज रेकलेसनेस. अगर आप किसी प्रोफाइल में, किसी काम में बोर्ड हैं और आप कहते हैं नहीं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं इसके अलावा क्या कर सकता हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन क्या अलाउ करती है, क्या मैं इस जॉब के साइड बाय साइड अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, और जब वो एक स्टेबल लेवल पे पहुंच जाए मैं जॉब छोड़ के फुल टाइम बिजनेस में करूंगा, या फिर मैं इस जॉब के साथ साथ कोई ऐसा सर्टिफिकेशन कोर्स कर लूँ, कुछ और ओपन स्कूल से पढ़ाई कर लूँ कि मेरे प्रोफाइल में ऐड ऑन हो जाए, मेरी क्वालिफिकेशंस में ऐड ऑन हो जाए, और फिर उसके बाद मैं उस फील्ड में एक जॉब ढूंढूं जहां पे मैं ढूंढना चाहता हूँ. वो एक कैलकुलेटेड रिस्क है जो मैं कहूंगी आपको जरूर जरूर लेना चाहिए. इनफैक्ट कॉन्स्टेंटली इन योर डे टू डे लाइफ आपको सोचना चाहिए कि मैं अलग क्या कर सकता हूँ, मैं क्या रिस्क ले सकता हूँ. रिस्क इस वजह से मत रिस्क ना लेना क्योंकि जैसा है वैसा चलने दो, या अगर ये आइडिया फेल हो गया तो क्या, या से अपने आप को लिमिट मत करिए. एक बैकअप रखिए. आपकी पढ़ाई आपकी सबसे बड़ी बैकअप है, आपका क्वालिफिकेशन आपका सबसे बड़ा बैकअप है, बिकॉज दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस टू गो डू व्हाट यू वांट टू एंड से यार फेल हो गया तो क्या, मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है ना, एक नौकरी ढूंढ लूंगा मैं. So that is the kind of calculated risk I'm asking you to take. I'm asking you to go and talk to your management, to your bosses, to give you the work that you want. I'm asking you to go talk to them about any change that you want in your profile or you feel that the company should have by itself. I'm telling you to switch jobs after taking a calculating what goes into the mix. I'm telling you कि अगर आप खुश नहीं हैं तो सिर्फ उस सिचुएशन को चलने मत दीजिए क्योंकि अब इतनी मेहनत करके एक काम ढूंढ लिया है तो अब ठीक है रहने दो, यही करते हैं. So that's what I'm taking. आप अपने डिसीजंस खुद लीजिए. सलाह सबसे लीजिए, डिसीजंस खुद लीजिए. इसलिए मत लीजिए क्योंकि किसी और ने कह दिया था यही करना है. इस टॉपिक पे एक मैं आप लोगों को बुक रेकमेंड करना चाहूंगी विच इज कॉल्ड फ्लूइड. मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त हैं आशीष जायसवाल, उन्होंने लिखी है, एंड दिस इज प्रिसाइजली अबाउट दैट दिस थिंग. और जो मिस्टर शाहनवाज ने अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया था अबाउट राजी, उन्होंने 40 साल की उम्र पे मेडिकल फील्ड में एंटर किया. आपको बोमन ईरानी का पता होगा, उन्होंने 40 साल की उम्र में एक्टिंग स्टार्ट की. I was recently reading about an entrepreneur. She is a 90-year-old lady who has started baking and setting up a business now at the age of 90 years. So don't close your options. Fluid by Ashish Jaiswal talks about precisely this कि आपने जो अभी तक जिंदगी में कर लिया है उसको लिमिट मत करने दीजिए अपने आप को. मैं डॉक्टर हूँ तो मैं सिर्फ डॉक्टर ही हूँ, और मुझे अगर पेंटिंग का शौक है तो मैं पेंटिंग नहीं कर सकता साथ में. या अगर मैं बैंकर हूं तो मैं डॉक्टरी नहीं कर सकता, मैं नहीं सीख सकता. या मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स नहीं कर सकता. अगर मैं पेंटर हूं तो मैं एक एनालिस्ट नहीं बन सकता. इस तरह के थॉट प्रोसेस को अपने आप को लिमिट मत करने दीजिए. सो हैव अ फ्लूइड वे ऑफ थिंकिंग. बी ओपन to ideas, be open to your own ideas, the suggestions you get from yourself, and take calculated risks all through, because that is what is going to get you where you want to be and not where you ended up. So I'll leave it at that. I'll hand it over to Mr. Shanawaz to send across any questions. Wonderful, Ms. Hiba.